So today we will be talking about one-tailed ANOVA. It is a technique in statistics which is used a lot. It is quite similar to t-test, but there are some differences. In t-test you study it between two groups. Now here you can do this ANOVA with more than two groups. For example, you want to measure, you have added say fertilizer A, fertilizer B and fertilizer 3 to three sets of plants. One grows, how these fertilizers affect their growth. So in some of these plants, some fertilizer A may work very well, so the plants may become much taller. Fertilizer B, it may not be very good, so rather it will harm, so it will become very short. And fertilizer C maybe has no effects, and you will see that these plants are whatever normal height is, it's there. So you want to check whether your fertilizer A, fertilizer B and fertilizer C, the three fertilizers which you have used, they have any effect on the plant or not. You want to, just by seeing them, you can't say, but you have to scientifically measure. The differences may be say 10 centimeter, 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter. The difference will come. By seeing them, you cannot actually say with confidence whether fertilizer A has made a difference or not. So you have to use statistics, some numbers, some values from which you can compare and say, okay, well, my particular fertilizer has worked well, or it has not worked well, or it has worked very badly. You can tell that. So let us go into this particular ANOVA. So ANOVA means analysis of variance. So what is variance? Let us first see. So variance is, this is the formula of variance. Sigma square is equal to this small sigma square is equal to this numeric sigma summation of xi minus mu inside bracket whole square divided by n. So xi minus mu divided by n whole square, where sigma square is the population variance. Now what is xi? You have say 10 plants, n is 10, you are measuring it for 10 plants, 10 plant hai. So total n का वैल्यू है 10. Sigma square is the variance which you are calculating. Xi is each individual data point, that is height of each plant, one plant, first plant or second plant or third plant or fourth plant. किसी का हाइट हो सकता है 10 सेंटीमीटर, सम का हाइट हो सकता है, कुछ किसी का हाइट हो सकता है 10.1, some are 10.2, some are 9.5, some are 9.8, some are 10.5, like this 10 points. So each value. So summation means, so take the first point xi, first point is 9.5 minus mu is the whole mean, that is सबका height को add किया, you have added all the heights and you have divided it by n, total number of plants, उसका average, that is called mean. So एक plant, so average comes, say for example the average mean is of the whole, the group mean is 10. First plant height is 9.5 centimeters, so 9.5 minus 10 is minus 0.5. Okay,
So it varies by minus 0.5. n-1 होता है ना? n-1 क्यों होगा? n-1 Variance तो होगा। we are talking about population variance in the how your particular one plant height varies from the mean. अच्छा। उसका so that is population. You are measuring that variance. So first is 9.5 and the group mean निकला था 10. So 10 से it is minus 0.5, छोटा है. So to remove this minus factor, it is squared. Yes. Then second plant का हुआ क्या 9.75 सेंटीमीटर से height. So 9.75 minus 10, that is 0.25. उसका भी स्क्वायर. हाँ, ये दोनों प्लांट कर लिया. देन थर्ड प्लांट ऐसे 10 ही हुआ, उसका 0 हुआ. 0 स्क्वायर 0, वो 0 ही रहेगा. So what you do, you make the sum. पहले का डिफरेंस कितना था? -0.5, नेक्स्ट 0.25, उसके बाद 0, नेक्स्ट वाला प्लस 0.25, नेक्स्ट वाला 0.5, ऐसे करके तुम्हारा है. यू ऐड देम एंड ऐड करके जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लिया एंड डिवाइडेड बाय n. So this is sigma square. This is the population variance. This is the variance which I am talking about. n-1 you are talking about degree chi-square test में degree of freedom के बारे में बोल रहे हो. Not that. हाँ, central variance भी सेम ही है. सेंट्रल नहीं, सैंपल. हाँ, वही तो सैंपल वेरिएंस सेम है. देखो सैंपल वेरिएंस से सैंपल वेरिएंस का क्या हुआ? तुम्हारा सैंपल का जो वैल्यू है, होल जितने भी सैंपल है उसका वैल्यू को माइनस किया. हाँ, सैंपल का साइज छोटा है इसीलिए -1 का, मतलब सैंपल बहुत ज़्यादा हो सका, मतलब छोटा है इसीलिए n-1 करते हैं. हाँ, यहाँ पे यू आर यूजिंग अ ह्यूज अमाउंट. सो n भी जो होगा n-1 भी वही होगा. हाँ, क्योंकि n-1 तुम्हारा एक कम होने से, हाँ, एक कम होने से कुछ नहीं होगा सैंपल वेरिएंस में. ठीक है ना? हाँ, वही सर पढ़ा सैंपल वेरिएंस में n-1. हाँ, ये तुम्हारा सैंपल वेरिएंस तुम देख रहे हो. सैंपल वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस एक है. एक चीज़ समझ लो, ये n-1 कहाँ पे यूज़ होता है? n से करता है जब बहुत सारे नंबर्स है. ये है जस्ट एरर्स कम करने के लिए. एरर तो होता ही है. एरर को कम करने के लिए इफ़ यू आर डीलिंग विथ 5-6 सैम्पल्स, हाँ, तब n-1 का बहुत सिग्निफिकेंट होता है. तुम्हारा नंबर ऑफ पॉइंट्स कम है, बट जितना तुम नंबर बढ़ाते जाओगे ना, तो तुम्हारा n-1 का n-1 इज इक्वल टू n. ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इन द लिमिट्स इट्स ऑलमोस्ट सेम. इसीलिए उसको n करते हैं. पॉपुलेशन वेरिएंस का ये है और सैंपल वेरिएंस का n-1 है. ठीक है? द डिनोमिनेटर इज n-1 इंस्टेड ऑफ n. इसको एक करेक्शन है, मतलब इसको कहते हैं बेसेल्स करेक्शन, एंड इट इज़ यूज टू गेट मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस फ्रॉम अ सैंपल. एरर जो आता है n मतलब जब जितना सैंपल साइज कम होता जाता है, तुम n से डिवाइड करोगे तो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है. बहुत अगर ज़्यादा है तो n इज इक्वल टू n-1 भी जो है n भी वही रहेगा. लेकिन जब सैंपल साइज कम होता जाता है तो ये करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो ये कोई मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिशियन, बेसेल नाम का स्टैटिस्टिशियन, ये करेक्शन अप्लाई किया है सैंपल वेरिएंस में. तो सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस में खास डिफरेंस नहीं है, यही दिखाना था तुमको. हाँ,
So this is you are analyzing variance. टी टेस्ट में you have analyzed only 2, एनोवा में 2 से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो. मल्टीपल ग्रुप, अनलाइक टी टेस्ट, एनोवा एफिशिएंटली कंपेयर्स 3 और मोर ग्रुप साइमल्टेनियसली. तुम्हारे पास 10 फर्टिलाइज़र का सैंपल है, सब में 20-20 करके प्लांट्स ग्रो किए हो. हाँ, अब तुमको देखना है कि कौन सा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है या नॉर्मल से कम हो रहा है. ये है इसका काम. दिस एनालाइजेज द डिफरेंस अमॉन्ग मल्टीपल ग्रुप मीन्स. सो प्लांट ग्रुप ए के लिए अलग मीन होगा, प्लांट ग्रुप बी का अलग मीन होगा, प्लांट ग्रुप सी का अलग मीन होगा, तीनों का अलग अलग वेरिएंस आएगा. हाँ, और तीनों सेट को ऐड करके एक ग्रुप का भी मीन आता है, जिसे पॉपुलेशन मीन भी कहते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस भी कहते हैं उसको, वेरिएंस अगर निकालोगे उसका. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट. अब मैं तुमको नेक्स्ट स्लाइड के बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा. When it is used in biological research, pharmaceutical biological research, compare growth rates across different treatments और species, जैसे फर्टिलाइज़र डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड करके कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है. मेडिसिन, एक ग्रुप को एक मेडिसिन खिलाया, दूसरे ग्रुप को मेडिसिन नहीं खिलाया, तीसरे ग्रुप को दूसरा मेडिसिन खिलाया. तो यू वांट टू सी वेदर योर दीज मेडिसिन्स हैव गॉट एन इफेक्ट और नॉर्मल आदमी जैसे था वैसे ही रहा. हाँ, ड्रग का तो टेस्टिंग होता है. सो यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू यूज़ एनोवा टू कैलकुलेट इट. साइकोलॉजी में भी यूज़ करता है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ करता है, फर्टिलाइज़र बहुत सारे जगह पे यूज़ कर, जहाँ भी चाहो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. वेर एवर यू हैव टू कंपेयर, मतलब नॉट ओनली इन बायोलॉजी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, when you need numbers to justify what you want to say that your experiment has worked or not. एक्सपेरिमेंट हो या कोई रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स. हाँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफलाइन पढ़ा रहा है, फिर उसका कितना मार्क्स आ रहा है. जो ऑनलाइन सिर्फ पढ़े हैं उसका मार्क्स कितना हुआ, जो ऑफलाइन पढ़े हैं उसका मार्क्स कितना हुआ, जो ब्लेंडेड मोड में पढ़े हैं उसका मार्क्स कितना हुआ. दिस इज सोशियोलॉजी एक्सपेरिमेंट. वो मार्क्स का वेरिएंस निकाल के देखोगे, अच्छा देखा है कि ब्लेंडेड मोड में सबसे अच्छा निकलता है, ब्लेंडेड मोड में सबसे अच्छा होता है. वाकई ये किया गया है रिसर्च एंड इट हैज़ बीन फाउंड ब्लेंडेड मोड में स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर. वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट दिया जाता है सबको. स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में कोई ज़्यादा तेज है उसको ज़्यादा मार्क्स मिला, जो कम तेज है कम मार्क्स मिला. यू हैव टू एंश्योर दैट योर पॉपुलेशन हैज़ स्टडीड वेल. तो डिफरेंट मेथड से उसका मार्क्स तुम लिए. दीज एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कंडक्टेड ऑलरेडी, पेपर भी निकल गया इसका. सो व्हाट एनोवा का टाइप होता है, मैनोवा है, मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स रिजल्ट ऑफ वन वेरिएबल अफेक्ट्स द वन ऑफ अनदर. एक के साथ मतलब डिपेंडेंट है. गर्मी के साथ पसीना, ये डिपेंडेंट है. इतना गर्मी इतना पसीना, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जो एनोवा यूज़ करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र ए का ट्रीटमेंट दिया गया है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, और इसमें फर्टिलाइज़र बी दिया गया है, इट इज़ ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बी. गर्मी के साथ पसीना नहीं है. ये दोनों, ये फर्टिलाइज़र का इफेक्ट इसमें अलग हो रहा है, फर्टिलाइज़र का इफेक्ट इसमें अलग हो रहा है. दिस इज़ फैक्टोरियल. और टू वे एनोवा में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है. टू वे नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले वन वे में तुम फोकस करो. वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आवर फोकस इज फर्टिलाइज़र ए ऑन हाइट. ठीक है, अगर टू वे एनोवा में फर्टिलाइज़र ऑन हाइट एंड वेट अलग बात होता है. उसका भी ये है कि इसका हाइट बढ़ गया लेकिन वेट कम हो गया. वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है. बट यू कैन डू इट विथ टू वे एनोवा. उसमें अब प्लस भी वैल्यूज़ आता है, माइनस भी वैल्यूज़ आता है.
और एक चीज़ मुझे दिखाना है, व्हाट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, नहीं ड्रॉ कर पाया। ये है से नंबर ऑफ पास, नंबर ऑफ फेल और हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, पास फेल या हाइट ऑफ प्लांट्स, कुछ भी हो। और ये है टाइम पास या कुछ भी हो, एक्स एक्सिस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। से मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 0 से स्टार्ट हुआ है। सो तुम देखोगे वाई एक्सिस मार्क्स से मार्क्स पकड़ लो, ये है नंबर ऑफ, ये मार्क्स पकड़ लो, MARKS मार्क्स। हाँ, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है ऐसे बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो बीच में तुम देखोगे कि से 50 से 70 ये रीजन, 50 मार्क्स से 70 मार्क्स जिसको मिला है, दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर होता है। कभी भी तुम देखोगे जो व्हेन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी रिजल्ट करोगे, कुछ भी करोगे, इफ इट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, CBSE के मार्क्स थ्रू आउट द ईयर, इफ यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ऑलवेज यू विल गेट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना सैंपल बढ़ेगा ये उतना एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, इफ अगर सबको ठीक से पढ़ाया गया है, हाँ, तो यू विल गेट। जो कम मार्क्स, बहुत कम मार्क्स मिला है, अगर ठीक से सबको पढ़ाया है, सब पढ़े हो, ठीक है ना, कोई दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आया जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, वॉर, हाँ, डिस्ट्रैक्शन, हाँ, एक ग्रुप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया एक स्कूल में, या क्लास नहीं हुआ, जो कि एक्चुअल थियोरेटिकल सिचुएशन में ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसे ही होता है। थ्योरी में सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट क्लास हुआ, परफेक्ट पढ़ा दिया, परफेक्ट क्लास किया सब। तो तुम देखोगे कि तब मार्क्स जब आएगा तो 50 से 70 में मैक्सिमम मिलेगा, या 40 से 70 में मैक्सिमम आएगा। 100 है उससे ज़्यादा, 100 में सबसे कम रहेगा, ऑलमोस्ट नियर टू 0, और 0 के पास में भी बहुत ही कम रहेगा, एकदम 0 नॉर्मल। सो दिस इज नोन एज ए, इसे कहते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी ऐसे होता है, इट कैन बी पॉजिटिवली स्क्रूड, मतलब ये नॉर्मल बीच वाला नहीं हो सकता है, सब 100 के तरफ मिल गया, मतलब बीच में कोई घोटाला हो गया, सबको क्वेश्चन पेपर मिल गया, हाँ, लीक हो गया, तो सबको सब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा था, ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा था, सब 70-80 के तरफ चला गया, 90-100 के तरफ चला गया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, सब नेगेटिव के तरफ चला गया, लेकिन उसमें भी तुम देखोगे कुछ स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ मतलब परफेक्टली मतलब पता है, ये अलग से ज़्यादा पढ़ा है, उसको भी मार्क्स मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव नॉर्मल से वो वेरी करेगा। दिस इज एक्चुअली व्हाट आई डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब चीज़ अगर तुम डिपार्टमेंट के कोई टीचर को पूछो, उसको उन लोग को मालूम नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ना, उसको पूछो कब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कब नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाँ, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली हमको समझा दो। तुमको तो फॉर्मूला दे देगा, फॉर्मूला लगा के तुम यू विल गेट द, लेकिन उसका फिलोसॉफी तो समझ में नहीं आएगा कि क्यों, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों इम्पोर्टेंट है।
बस फिर हम्म। अभी तक समझ नहीं आया। नहीं मैं इन लोग को दोष नहीं देता हूँ, इन लोग को दोष नहीं देता हूँ, ये लोग बायोलॉजी का टीचर हैं, उन लोग को ये मैथमेटिक्स, लेकिन जिस लेवल में काम करना पड़ा था मुझे, मैं तो कंपनी में काम करा था, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता था, एक ड्रग पास होगा या नहीं होगा, मतलब मैं कैसे ड्रग और टेस्टिंग अथॉरिटी को या फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी एफडीए को या इसको समझाऊं कि ये ड्रग सेफ है, काम कर रहा है, उसको तो मुझे बेचना है। तो ये काम किया, एक में काम किया, दो में काम नहीं किया, मतलब एक दो नहीं होता है, 100 में काम किया है, उसमें से 10 में काम नहीं किया है। तो 10 में काम नहीं किया है, क्यों किया है, नहीं किया है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन 90 में तो काम किया है, 10 में काम नहीं किया है। हाँ, तो दिस इज़ अ गुड, एक मार्केट में लाने के लिए दिस इज़ अ गुड, मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है। तुम एक स्टैटिस्टिक्स का ये टेस्ट किया है कि ये मार्केट में ये ड्रग जब बिकेगा तभी तुम मार्केट में छोड़ सकते हो, नहीं तो लोग ड्रग्स लेगा और काम नहीं करेगा, मर जाएगा। ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, दे विल कीप ऑन सफरिंग। और अगर इलनेस ज़्यादा हुआ, कोई लाइफ डिजीज़ हुआ, अगर मेडिसिन ठीक नहीं पड़ा तो डेथ हो जाएगा। तो तुम मार्केट में तो ऐसे ही, ओ अच्छा उसमें काम कर गया, एक में काम कर गया, चलो बेच दो, ये ऐसे तो नहीं बोल सकते। तुमको कंप्लीट कॉन्फिडेंस से बेचना पड़ेगा, ताकि बाद में कोई तुमको ना पकड़े। अगर कोई पकड़े कि उसमें मेरा काम नहीं किया, तुम ठीक से दूसरा गड़बड़ किया है, वो ड्रग के लिया ही नहीं, दूसरा कुछ लिया है, हाँ, फिर वो केस ठोक दिया कि तुम्हारा ड्रग लिया था, कोई काम नहीं किया ना, बेकार का दिखा रहे हो तुम। तो तब तुमको ये तुम्हारा ये डेटा दिखाना पड़ेगा कि देखो मैंने एनोवा किया है, मैंने टी टेस्ट किया है, मैंने ये टेस्ट करके ये जो वैल्यूज़ आया है, इसमें हमको 90% कॉन्फिडेंस से हम बोल सकते हैं कि ये काम करता है, 10% काम नहीं कर सकता है। एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी कि यू कैन पास दिस ड्रग। 90% काम किया तो मार्केट में छोड़ दो, तो तब तुम्हारा केस, तुम्हारा डिफेंस बन गया है। तो वन टेल टेस्ट है, लुक्स फॉर डिफरेंसेस इन ओनली वन डायरेक्शन, ग्रेटर देन या लेस देन। हाँ, टेस्ट स्पेसिफिक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये मीन से ज़्यादा है या मीन से कम है, नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है, या पॉपुलेशन होल सबका पॉपुलेशन के मीन से ज़्यादा है या कम है, इसमें ये खुश हो जाता है। तुम 10-15 सैंपल लो, ये जो मीन होता है इसका, उससे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, हाँ, देख के तो तुमको एक वैल्यू देना पड़ता है। हाँ, इट्स गॉट अ वेरी गुड स्टैटिस्टिकल पावर। हाँ, इट रिक्वायर्स प्रायर नॉलेज, तुमको मीन का ये चाहिए। अब टू टेल टेस्ट इसमें सब डायरेक्शन में देखता है, मतलब पॉजिटिव साइड में भी, पॉजिटिव नेगेटिव वो भी देखता है, और ये नॉट इक्वल भी इसमें काम करता है कि दिस वन इज़ नॉट इक्वल टू दिस। ये टू टेस्ट बाद में कराऊंगा, पहले वन टेल्ड ही पहले ठीक से समझ लो। हाँ, ओवरलोड मत कर लेना, टू टेस्ट अब कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही चीज़ में लेके तुम पकड़ो, सिर्फ हाइट को लेके पकड़ो। ओके, सो नेक्स्ट है, वाई इज एनोवा वन टेल्ड। तो दिस इज, पहले एक चीज़ बताऊं कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया है, रोनाल्ड फिशर ने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। हाउ डिड ही मेक इट? उसने ही टुक जितना भी नंबर हो सके, हाँ, जितना भी नंबर हो सकता है, हाँ, उसका उसने वेरिएंस निकाला। कोई हाइट ऑफ प्लांट्स का भी जितना भी हाइट है, 0 से 0.001 0.002 करके उसने सब नंबर को लिया, ठीक है, उसका कितना वेरिएंस आ रहा है, उसका टोटल पॉपुलेशन का मीन तो तुम निकाल सकते हो, सब नंबर का अगर करके उसका कितना वैल्यू आएगा, हाँ, कितना % उसका कॉन्फिडेंस के वैल्यू आएगा। हाँ, उसने ऑलरेडी एक टेबल, स्टैटिस्टिकल टेबल बना लिया, मतलब रैंडमली बहुत सारे नंबर जनरेट किया हुआ है। हाँ, जितना मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ जितना भी हो सकता है, सब इस टेबल के वैल्यूज़ में दिया गया है, ठीक है।
वो एक थियोरेटिकल टेबल है, इट इज़ मेड विथ इट, कोई प्रैक्टिकल टेबल नहीं है। अब तुम्हारा डेटा, द वन विच यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, उससे जो वैल्यू आया है, एफ वैल्यू जो आ रहा है, हाँ, तुम उस वैल्यू को यू आर कंपेयरिंग इन द टेबल। उस टेबल में बताया गया है कि ये 10% कॉन्फिडेंस ये परफेक्ट है, 20% कॉन्फिडेंस परफेक्ट है, ऐसे करके 90%, 100% कॉन्फिडेंस तक होता है, 0 से 100% कॉन्फिडेंस तक होता है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होता है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालता है। परसेंटेज में इजी इंटू 100 होता है, तो प्रोबेबिलिटी में 0 से 1 होता है, जितना भी उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगा उसमें, ठीक है, इट इज़ इन दैट टेबल। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू एकदम 90 के पास आ गया, तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू ऐसे आ गया, तो तुम ऊपर टेबल में दिखोगे, अच्छा इतना वैल्यू आया तो इसमें 90% कॉन्फिडेंस है, भाई मैं ये ड्रग को बेच सकता हूँ या ये फर्टिलाइज़र को बेच सकता हूँ। सो यू हैव अ ऑलरेडी, जैसे लॉग बुक होता है, लॉग में जैसे सब इसका वैल्यू ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है, सो तुम लॉग का फॉर्मूला लगा के लॉग टेबल देखोगे, हाँ, तो लॉग टेबल में वो वैल्यू रहेगा, तुम्हारा कितना वैल्यू होना चाहिए। तुम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हो, पहले लॉग बुक यूज़ कर रहे हो। लॉग बुक में तुम लॉग का फॉर्मूला लगा के लॉग एन उसका एक लॉग 10 बेस 10 में तुम कैलकुलेट करके उसको एक वैल्यू आया, उसका तुम एंटी लॉग देख रहे हो कि इतना लॉग वैल्यू आया तो इसका एंटी लॉग एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। सो तुम्हारा वो वैल्यू तुम देख के उसका एंटी लॉग जब तुम टेबल में देखोगे, लॉग टेबल में देखोगे, हाँ, तो तुमको वो वैल्यू दे देगा कितना होना चाहिए, क्योंकि उसमें सब जितना नंबर का वैल्यू होता है सब है उसमें। सिमिलरली ये जितना भी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए उस थियोरेटिकल टेबल में बनाया है, इसीलिए रोनाल्ड फिशर का ये काम बहुत सिग्निफिकेंट है कि ही मेड विदाउट द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, इसने किया है ये चीज़, हाँ, यूजिंग फार्मूलाज एंड हाई क्वालिटी मैथमेटिक्स, इसने एक रैंडम टेबल बना लिया है। हालांकि रोनाल्ड फिशर मतलब आई एम नॉट अ वेरी फैन ऑफ हिम्स, मतलब बहुत मतलब गड़बड़ किया है। मेंडल का डेटा को उल्टा सीधा बोला, मेंडल को बोल दिया कि ये इतना थियोरी, उसका जो रिज़ल्ट आया था पी प्लांट का स्टैटिस्टिकल काई स्क्वायर टेस्ट में, मेंडल का टेस्ट जो उसने ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट किया था काई स्क्वायर टेस्ट, कि देखा कि 3:1 रेशियो है या नहीं। एग्जैक्टली तो मतलब 75 टॉल आएगा और 25 ड्वार्फ, ऐसे तो नहीं होगा, हाँ, उसमें तुमको 80 तुमको टॉल आया, 20 कम आया, हाँ, तो ये टेस्ट करके इस काई स्क्वायर टेस्ट में उसमें पता चला कि ये मेंडल का रेशियो फॉलो, तो बोला कि इतना परफेक्ट रेशियो आता ही नहीं नॉर्मल सिचुएशन में, इसीलिए उसका टेस्ट फेक है, मेंडल का बोला था। तो ये एक्चुअली वो ब्रिटिश का डोमिनेंस इन स्टैटिस्टिक्स एंड बायोलॉजी रखना चाहता था, हाँ, कि ऑस्ट्रियन ये कौन सा एक छोटा सा चर्च में उसका पादरी है, वो पादरी क्या काम करेगा, उसको अंग्रेजी भी नहीं आता है बोलने, हाँ, तो सचमुच मेंडल का लाइफ ऐसे ही है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, रोनाल्ड फिशर ने ये बनाया था, ये काम अच्छा किया था, लेकिन इसको जितना क्रेडिट दिया गया, इसका नाम को ही एफ टेस्ट बोल दिया, हाँ, जैसे टी टेस्ट, एक स्टूडेंट नाम का एक आदमी था, मतलब साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स का टी से है उसका नाम, उस टेस्ट उसने वो टेस्ट निकाला था, उसको बोल दिया टी टेस्ट कर दिया नाम, पहले था ये स्टूडेंट्स टेस्ट, हाँ, उसका नाम वो टेस्ट दे दिया, तो ये ऐसे रोनाल्ड फिशर का नाम एफ टेस्ट दे दिया। तो खैर उसका है, उसका नाम दिया तो कोई गलती नहीं है। सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एसिमेट्रिकल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, सिमेट्रिकल था, नेगेटिव साइड में मतलब कम साइड में भी जितना है, ग्रेटर साइड में भी उतना ही है, ठीक है, कम मतलब नॉर्मल का बीच के मीन से, हाँ, 50% के इधर भी जितना है 50% के उधर भी उतना ही है, नंबर सेम है। ये एसिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आ रहा है इसमें, तुम नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर करके निकाल दे रहे हो, ठीक है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वैल्यूज सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, सो पॉजिटिव के साइड में ही इसका सब वैल्यूज आएगा,
नेगेटिव साइड में कोई वैल्यूज़ नहीं। टू टेल्ड में वैसे नेगेटिव साइड में वैल्यूज़ आएगा, लेकिन वन टेल्ड में राइट टेल सिग्निफिकेंस मतलब पॉजिटिव साइड राइट है। सो ऑल मीनिंगफुल वेरिएबिलिटी इज मेजर्ड इन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, तुम सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर कर रहे हो, राइट साइड वाला पॉजिटिव वैल्यूज, सब पॉजिटिव वैल्यूज है, क्योंकि तुम स्क्वायर करके नेगेटिव वैल्यू को निकाल दिए हो। अच्छा, तो इसमें एफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? व्हाट इट इज़ कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक। इस एफ टेस्ट को एक स्टैटिस्टिक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेरिएंसेस विच कैनॉट बी नेगेटिव। मतलब ए बी सी, ए का जितना वेरिएंस है डिवाइडेड बाय बी, मीन का वेरिएंस कितना है, बी का कितना वेरिएंस है डिवाइडेड बाय उसका मीन का जो वेरिएंस है, इसको करके इस तरह से किया। ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ, तो क्योंकि तुम उसको वेरिएंस में तुम स्क्वायर मार दिए हो। स्क्वायर जब मार दिए हो तो माइनस माइनस का, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस ही हो गया ना। हाँ, उसको तुम पॉजिटिव मार दिए हो, तो इसीलिए वो नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी। हाँ, इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो बिटवीन ग्रुप टू विद इन ग्रुप वेरिएंस। लार्जर एफ वैल्यूज इंडिकेट ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। मतलब रैंडम चांस के से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मतलब तुम्हारा टोटल पॉपुलेशन का मीन, तीनों ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों का तुम मीन लिए हो। हाँ, तीनों का मीन तुम लिए हो, जो वैल्यू है उससे प्लांट ए का मीन बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इतना मतलब बाई चांस इतना लंबा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा जो नॉर्मल कंट्रोल्ड वेरिएंस, मीन वेरिएंस जो है, हाँ, वो इतना ही दिखाता है। रैंडम चांस में एक थोड़ा लंबा हो गया, जैसे क्लास में तुम थोड़े लंबे हो बाकी लड़कियों से, लेकिन तुम अगर 7 फुट हो गए हो, हाँ, तब तो कुछ मतलब ये तो नहीं, तुमको तो एवरेज हाइट तो नहीं बोलेगा कोई, ठीक है ना। जब तक हाँ 6 फुट के थोड़ा हो, ठीक है, चलता है। हाँ, रैंडमली बाई चांस ये लड़की लंबी है, दैट्स ऑल, या बाई चांस ये नाटी है। अगर 3 फुट हो गया तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। कुछ एक गड़बड़ है या कुछ डिफरेंस है। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू से। मतलब तुम्हारा पूरा ग्रुप को लेके ये यू कैन डू अ टेस्ट। ओके, सो एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस में बोलता है कि भाई कोई तो फर्क नहीं है, नल मतलब ज़ीरो। हाँ, कोई सनसनी कुछ नहीं है, ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होगा, समथिंग लाइक दैट। जिससे उसका μ1 मतलब पहले का सबका ग्रुप का मीन सेम है। μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू जितना भी ग्रुप लिए हो सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब काई स्क्वायर पे में नल हाइपोथेसिस लेगा, अरे भाई ये तो इससे मैच करता है, मेंडल का रेशियो से मैच करता है, दैट्स इट, कोई फ़र्क नहीं है, इट फॉलोज मेंडल्स लॉ, दिस इज़ द नल हाइपोथेसिस। मतलब तुमको कोई वेरिएशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, जैसे मतलब एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर तुम्हारा काई स्क्वायर वैल्यू या इसका एफ टेस्ट का वैल्यू, अगर तुमको वो जो पैरामीटर, जो स्टैटिस्टिकल को प्रोबेबिलिटी का टेबल जो बनाया हुआ है, उसमें अगर उस वैल्यू से ज़्यादा मिला है, देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन, कि क्यों भाई, क्यों इतना ज़्यादा मिला है। इसके मतलब ये नल हाइपोथेसिस को मैं इनवैलिड करता हूँ। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में दिखता है कि μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, इट मे बी इक्वल टू μ3, ठीक है।
सो टेस्टिंग प्रोसेस क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट एफ स्टैटिस्टिक्स टू डिटरमिन इफ वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. सो तुमको लिखना है कि बाई द एफ स्टैटिस्टिक का वैल्यू या काई स्क्वायर या टी टेस्ट, द वैल्यू इज दिस विच इज ग्रेटर देन और हायर देन और इन सम केसेस लोअर देन the f value which is lower than this amount of degree of or this degree of freedom. This is इतना lower है. So the null hypothesis is rejected and the alternate hypothesis that mu1 is not equal to mu2 is not equal to the grand mean may be equal to this उसका अलग hypothesis बनेगा. उतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाने का ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट इक्वल टू. टेस्टिंग है कैलकुलेट एफ स्टैटिस्टिक्स टू डिटरमिन इफ वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. ये चीज़ क्लियरली लिखना पड़ेगा. अगर तुम लिखोगे नहीं तो मार्क्स काटेगा. तुम नल हाइपोथेसिस जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके छोड़ देने से नहीं होगा. वैल्यू कैलकुलेट करके तुम क्या निष्कर्ष निकाले हो उसमें से, हाँ उसका उससे क्या क्या सीखे हो. वो तो बोला एक वैल्यू निकाल दिए हो तो उससे क्या तीर मारे हो. वो तो आर्ट्स हो गया, साइंस तो नहीं हुआ. उस वैल्यू का उसका मतलब है तो मेरा जो नियम था कि रूल था कि ये है तो ये ऐसे नहीं है, ऐसे होगा. सो तुम्हारा हाइपोथेसिस इज तुम ये हो सकता है. योर बिफोर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट तुम कुछ सोच के किए हो, तुम्हारा सोच है हाइपोथेसिस. मेरा हाइपोथेसिस ये है कि ऐसे 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 कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन तुम टेस्ट करके देखो कि फ़र्क हुआ है. फिर मैं नल हाइपोथेसिस को काट दिया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है. कैसे किया है? ये एफ टेस्ट करके. अच्छा, सो एफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? एफ इज इक्वल टू दिस इज अ रेशियो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस ब्रैकेट में विदिन ग्रुप वेरिएंस. बिटवीन ग्रुप वेरिएंस मतलब वेरिएंस ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप ए के साथ ग्रुप बी के साथ उसके अंदर वेरिएंस डिवाइडेड बाय ग्रुप ए के अंदर में ही जितना वेरिएंस है या ग्रुप बी के अंदर ही जितना वेरिएंस है. सबको लेके जो वेरिएंस हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी के बीच में जो वेरिएंस हो रहा है, ठीक है ना. ए बी सी का जितना भी हाइट ए के जितना भी प्लांट्स है उसका हाइट ऐड किया, बी के जितने भी है उसका भी हाइट ऐड किया, सी के जितने भी हाइट है उसको ऐड कर दिया, करके उसका वेरिएंस कैलकुलेट किया. उसको विदिन उसको डिवाइड किया ए के वेरिएंस के साथ सिर्फ. फिर जो वैल्यू आया, लार्ज वैल्यू अगर आ गया, एफ का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि सबका ग्रुप का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का तुम लोगे, नंबर लोगे, तो उसका तो वेरिएंस ज़्यादा ही होगा ना. छोटे ग्रुप में वेरिएंस कम होता है, ज़्यादा ग्रुप में वेरिएंस उसका ज़्यादा होगा. पॉपुलेशन उसका हाइट ज़्यादा है से काम ही किया वो, हाँ लंबा हो गया है, तो लंबा के साथ नॉर्मल को भी तुम ये किए हो तो तुम्हारा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में भी वेरिएंस आ जाएगा. तो उसको डिवाइड किया. अगर वैल्यू बहुत लार्ज आ गया उसका मतलब ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है भाई. लार्ज तो आना नहीं चाहिए. तुम्हारा अगर सेम ही है तो मतलब से फॉर एग्जांपल बीबी कॉलेज के एक क्लास में अगर मैं तीनों क्लास में एक साथ पढ़ाता हूँ, हाँ सेम एवरेज इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हाँ तो कोई फ़र्क तो आना नहीं चाहिए. सबका तो सेम ही होगा. उसका लार्ज वेरिएंस तो आएगा कम ही आएगा. लेकिन बीबी कॉलेज के साथ बीसी कॉलेज का दूसरा टीचर लाओगे तो वेरिएंस ज़्यादा आएगा, क्योंकि बीबी कॉलेज का वेरिएंस सबको ही 90 मिल रहा है, अभी बीसी कॉलेज में सबको ही 40 मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट. ऐसे सोचोगे तो मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ. सो दिस इज़ वेरिएंस ज़्यादा हुआ तो मतलब भाई ग्रुप में अब बीबी कॉलेज के साथ बीसी कॉलेज का कंपेयर किए देखोगे कि बीबी कॉलेज का तो वेरिएंस में नंबर ज़्यादा है और बीसी कॉलेज में बहुत कम है. हाँ बीबी कॉलेज में 50 एवरेज आ रहे हैं, वेरिएंस आ रहा है, और बीसी कॉलेज में 48 आ रहे हैं.
ये रैंडमली भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर देखो क्या होगा, ये तुम ज़्यादा नहीं करोगे। लेकिन वैल्यू अगर बीसी कॉलेज में सबका 40 आ रहा है और बीबी कॉलेज में 50 आ रहा है, भाई तुम टेबल देख के, टेबल में सब डेटा कैसे होना चाहिए सब है, तुम उसमें वो वैल्यू देख के तुमको पता चल रहा है कि भाई ये तो एफ वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हाँ तो बीबी कॉलेज बेटर कॉलेज है, यहाँ पे नंबर ज़्यादा मिलता है, समथिंग लाइक दैट। सो लार्ज एफ वैल्यू हुआ था, उसका मतलब बीबी कॉलेज के ग्रुप और बीसी कॉलेज के ग्रुप में डिफरेंस है। अब स्मॉल एफ वैल्यूज़ जो है, स्मॉल एफ वैल्यूज़ स्मॉल अगर है तो तुम देखोगे कि, तो इसमें तुम क्या किया, एक बार बीबी कॉलेज का वेरिएंस देखे हो, बीसी कॉलेज का वेरिएंस देखे हो, सबको बीबी कॉलेज बीसी कॉलेज को ऐड करके उसका भी वेरिएंस निकाले हो, ठीक है ना। अब एक मिडिल वैल्यू 45 आया है या कुछ ऐसे ही वेरिएंस आया है, ऐसे वो मैं मुंह से बोलना गलत है, ऐसे नहीं आता है, वो टेबल देख के पता चलता है। ये बहुत ही ट्रिकी है, वो मेंटली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, हाँ वो टेबल देखना पड़ता है। सो तुम अगर क्या देखोगे कि नहीं भाई इसमें सेंट्रल जो मार्क्स दोनों का मिला के हो रहा है, बीबी कॉलेज का 5 ज़्यादा है, बीसी कॉलेज का 5 कम है। सो ऐसे तो इसमें तो माइनस जो होता है, माइनस को तुम उड़ा दिए हो, तो तुम 5 में ही तुम कैलकुलेट करोगे। अरे भाई बीबी कॉलेज और बीसी कॉलेज में 5 का डिफरेंस आता है, 5 नंबर का तो डिफरेंस आता ही है मीन से। एवरेज जो जितना मार्क्स आया है आसनसोल में, बीबी कॉलेज में 5 ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मिलता है। तो बीबी कॉलेज बीसी कॉलेज सेम नहीं है। कॉन्फिडेंस से तुम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को बोल दो कि बीसी कॉलेज के सब टीचर को भगा दो, ऐसे बेकार फालतू बात। नेक्स्ट वाले, सो कॉमन जो फॉर्मूलाज यूज होता है, ग्रीक सिंबल्स यूज होता है, म्यू पॉपुलेशन मीन, अल्फा इज सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस मतलब 90% प्रोबेबिलिटी में तुम 0.9 आया, 90% सिग्निफिकेंस, इट इज़ सिग्निफिकेंट कि ये अलग है, हाँ 90% ये सिग्निफिकेंट है। 90% कॉन्फिडेंस में मैं बोल रहा हूँ, 10% उसमें डिफरेंस आ रहा है, सो 90% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि ये अलग है। और सिग्मा स्क्वायर जो होता है, तो माइनस वैल्यू इसे अल्फ़ा, ये सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, एक्स होता है सैंपल का मीन, हाँ मतलब ग्रुप ए का सब का मीन एक्स बार, एन होता है सैंपल साइज, के होता है कितना ग्रुप, के इज नंबर ऑफ ग्रुप। हम लोग से फॉर एग्जांपल 3 ग्रुप कंपेयर कर रहे हैं। एनोवा में एस वर्ड यूज होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, एम एस वर्ड होता है मीन स्क्वायर, एंड डी एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। से तुम्हारा टोटल सम होगा 100, हाँ तुम्हारा 3 वैल्यू है, एक्स वाई और जेड है, ठीक है ना, 3 वैल्यूज है, ये तीनों को ऐड करके तुमको 100 आना ही है, ठीक है। इसमें तुम x का एक वैल्यू दे दिया, x का तुम कुछ भी वैल्यू दो, x का तुम 40 वैल्यू दे दिया, ठीक है। y का चलो मैं y का 20 वैल्यू दे देता हूँ, कुछ भी। आई एम फ्री टू गिव वैल्यूज टू एक्स एंड वाई, लेकिन इसका सम आना चाहिए 100। अब z के पास लेकिन फ्रीडम नहीं है, z को 40 होना ही है 100 लाने के लिए। x और y कुछ भी कर सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकते हो 100 के नीचे, ठीक है ना। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना है, n है, टोटल काउंट x y z 3 है, सो इट इज n-1। इसीलिए डिग्री, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको फ्रीडम नहीं है, दिस डज नॉट हैव फ्रीडम।
या उल्टा तुम हमारे केस में तो काफी माइनस होगा। हाँ, इसमें तुम मतलब एक्स को भी वाई और जेड को फ्री करके एक्स को भी बंदी बना सकते हो, ठीक है ना। सो मतलब दो किसी दो का दो हमेशा फ्री रहता है, फ्रीडम है, तुम दो कोई भी वैल्यू ले सकता है, मतलब विद इन दैट लिमिट्स, विद इन लिमिट्स वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसका लिमिट है 100। सो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कोई पढ़ाया नहीं, हमको भी पढ़ाया कि मालूम ही आता ही नहीं था। ये एक फॉर्मूला का ब्रेकडाउन है। फर्स्ट एफ निकालते हो ms1/ms2 मीन स्क्वायर वैल्यू, फिर ms1 ss1 बाई df1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, दूसरा का निकालते हो ms2, फिर ss1 निकालते हो, ss2 निकालते हो। हाँ, सो ये इसको देखने का ज़रूरत नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल देखते हैं बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन? टेस्टिंग 3 different fertilizers A, B and C on plant growth. 5 plants randomly assigned to each fertilizer group. 5 प्लांट करके तुम दे दिया और उसमें फर्टिलाइज़र ए, फर्टिलाइज़र बी और फर्टिलाइज़र सी तुम देना चालू किया। उसके बाद तुम्हारा है डेटा कलेक्शन, तुम्हारा है अब प्लांट्स ग्रो किया। अब मेजर द प्लांट हाइट इन सेंटीमीटर आफ्टर 4 weeks ऑफ ग्रोथ। रिकॉर्ड मेजरमेंट ऑफ ईच प्लांट्स इन ऑल द ग्रुप्स, सब प्लांट का हाइट मेजर किया है। और थर्ड काम क्या है? स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया, कंडक्ट वन वे वैनोवा टू डिटरमिन इफ फर्टिलाइजर टाइप अफेक्ट्स ग्रोथ। एक सिग्निफिकेंस लेवल तुम डाल दिए हो। सिग्निफिकेंस लेवल क्या डाले हो? 0.05 फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसका मतलब क्या है कि 5% चांस, 0.05 इज 5%। तुम 5% सिग्निफिकेंट तुम वैल्यू तुम रखे हो। अगर 5% से ज़्यादा अगर मेरा डेटा वेरी किया तो भाई ये सिग्निफिकेंट है, बहुत स्ट्रिंजेंट किया। तुम 99% तो तुम 0.01 भी कर सकते हो, मतलब 1% सिग्निफिकेंस भी रखते हो, वेरी स्ट्रिंजेंट। मतलब 1% भी अगर चेंज हुआ है भाई, हाँ 1% भी अगर मेरा चेंज हुआ है तो भाई ये चलेगा नहीं, ये तो अलग है, ठीक है ना। सो तुम 0.05 तुम अल्फ़ा को सेट किया सिग्निफिकेंट वैल्यू। तुम अगर थोड़ा सा चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट में वो लोग अपना 80% रखता है, हाँ मतलब 0.8 रखता है, मतलब 0.08 रखता है, मतलब 0.8 रखता है, तो मतलब वही है 80%, मतलब जैसे 0.09 90% होता है। हाँ, तो इस तरह से ये 0.505 है 5%। तो इतना तुम्हारा कट ऑफ वैल्यू है। इसके इधर आ गया 0.05 से ज़्यादा आ गया तो भाई नहीं चलेगा। अगर अंदर में आया तो भाई चलो 1-2 थोड़ा वेरिएशन होता है, चलता है, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल देखो, तुम टेस्ट किया है कि ये ड्रग से ये तुम लिए हो, अगले मतलब 1 वीक बाद तुम्हारा डिजीज़ क्योर हो गया, ठीक है ना। अब तुम देखोगे कि 95% पॉपुलेशन में ये ड्रग क्योर हो गया, ठीक है, और 5 लोगों में क्योर नहीं हुआ। हाँ, जब तक अगर मतलब 95 से थोड़ा सा कम हो गया, अगर 94 लोग क्लियर हुआ, 6 लोग सही नहीं हुआ, तो तुम्हारा कट ऑफ वैल्यू वहाँ पे है। तुम इतना स्ट्रिंजेंट कंट्रोल लिया कि भाई 1 कम हुआ है, 94 हो गया, 6 लोग क्योर नहीं हुआ है, ये ड्रग मार्केट में नहीं जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो, समझे ना। ये सिग्निफिकेंस का वैल्यू है। फिर बायोलॉजिकल डेटा टेबल, फर्टिलाइज़र ए 10, 12, 11, 13, 12, फर्टिलाइज़र बी 14, 13, 15, 14, 16, फर्टिलाइज़र सी 12, 11, 13, 13, 14। हाँ, ये तीनों का हाइट मेजर किया गया है, प्लांट्स का हाइट मेजर किया गया है।
अब ग्रुप मीन कैलकुलेट किए, फर्टिलाइजर एक हुआ है, हाँ सबको ऐड करके टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 5 कर दिए हो, हाँ एवरेज हाइट हुआ 11.6, इसका फर्टिलाइज़र बी का आया 14.4, फर्टिलाइज़र सी का आया है 12.6। ठीक है। अब ग्रैंड मीन तो ऐड किए सबको, 15 जो मेजर है ए प्लस बी प्लस सी सबको करके 145 आया है। सो टोटल कितना प्लांट था, 5 5 5 15 प्लांट था, उसका ग्रैंड मीन है 12.97। इसका वैल्यू देखो 11.6, 14.4 और 12.6। हाँ ग्रैंड मीन होता है 12.97। भाई फर्टिलाइज़र दे के कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है? ये तीनों का बीच वाला वैल्यू ये है। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एफ स्टैटिस्टिक। उसके पहले बहुत सारे काम करना पड़ता है। पहले सम ऑफ स्क्वायर्स एस कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एन समेशन जितना भी वैल्यू है एक्स जे क्या होता है, ग्रुप का मीन, ए का मीन से फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ए का मीन या बी का मीन या सी का मीन, ग्रुप का मीन माइनस ग्रैंड मीन, तीनों का जो मीन है होल स्क्वायर कर दिया। मतलब बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर वेरिएंस निकाल रहे हो, ठीक है ना। वो वेरिएंस नहीं है, उसके डिवाइडेड बाय एन नहीं किए हो, इसीलिए उसको सम ऑफ स्क्वायर्स बोलते हैं। वी हैव मल्टीप्लाइड, रादर उसको तुम टोटल नंबर एन से मल्टीप्लाई कर दिए हो। एन इज द सैंपल साइज पर ग्रुप, ए में क्या है 5 है, सो 5 से तुम मल्टीप्लाई किए हो। ईच प्लांट, एक से पहला प्लांट, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, चौथा प्लांट, पांचवा प्लांट, सबका मीन करके सबको ऐड किए हो। समेशन मतलब फर्स्ट का डिफरेंस, सेकंड का डिफरेंस, थर्ड का डिफरेंस, फोर्थ का, फिफ्थ का डिफरेंस, सबका ये करके ऐड करके उसको, ये जो वैल्यू है सबका स्क्वायर करके उसको ऐड कर दिए हो, सम ऑफ स्क्वायर्स। हाँ ये एस बिटवीन ग्रुप्स, एस विद इन ग्रुप्स, दोनों निकालना पड़ता है। हाँ ये बिटवीन ग्रुप्स किए हो, अभी ये विद इन ग्रुप्स किए हो। मेजर्स वेरिएशन विद इन ईच ग्रुप, एस विद इन से ईच स्कोर, मतलब ईच प्लांट का स्कोर माइनस ग्रुप्स का मीन। मतलब एक तुम पूरा पॉपुलेशन का सबका एक एक करके ग्रुप का मीन लेके काम कर रहे हो, ठीक है ना, और एक कर रहे हो इंडिविजुअल सैंपल का लेके काम कर रहे हो। सो एस बिटवीन क्या बिटवीन, एस बिटवीन जो होता है, विद इन नहीं, ये फॉर्मूला है, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट 5 11.6 माइनस 12.97 जो कैलकुलेट किया है मीन 11.6 ही आया। तो इसमें देखो 11.6 ही आया है ग्रुप ए का, इसका 14.4 और इसका 12.6 आया है, ग्रुप का मीन 12.97 आया है। सो 11.6 ये किया, 14.4 माइनस किए, स्क्वायर किया, ये सम ऑफ स्क्वायर तुम किए। अब विद इन रिजल्ट क्या है 24.13। अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सो एस बिटवीन का वैल्यू क्या है 25.73 और एस विद इन का क्या है 16.8, तुम कैलकुलेट किए हो, ठीक है ना। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं जैसे बोल दिया 3 वैल्यूज है ए बी और सी, हाँ तो मतलब तुम्हारा ग्रैंड मीन तो निकल गया है, 2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक फिक्स हो जाएगा। हाँ तो n-1 किए हो। सो डी एफ टोटल माइनस गो, मतलब अब कितना है डी एफ विद इन, डी एफ बाहर का कितना 15 है, -3 12। 15 - 3 पास हो गया सर। 15 -3 है, ये तुम्हारा 15 प्लांट है, हाँ और 3 ग्रुप है, उसको माइनस किए हो। 5 - 1 4 5, मतलब तीनों का 5 - 1, 5 - 1 ए के लिए, 5 - 1 बी के लिए, 5 - 1 सी के लिए, मतलब तीनों का मिला के तीनों 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू में तो 4 को फ्रीडम है, 1 को तो फ्रीडम नहीं है।
तो 3 का एक हाँ, सबका एक, उसको सबको मतलब ग्रुप में क्या है, 3 ग्रुप है, ए बी और सी, उसका 2 है। और यहाँ पे कितना है, 15 प्लांट है, लेकिन 15 प्लांट तीनों ग्रुप में है। हाँ, तो अलग अलग वो इंडिपेंडेंट है। वी आर यू टॉकिंग, ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ए के साथ बी का कोई नाता नहीं है, सिर्फ तुम प्लांट का मीन कैलकुलेट करने के लिए ले रहे हो। हाँ, सो वो जो -1 -1 -1 तीनों का -1 हो गया क्या, -3। ओके, और 50 जाएगा। हाँ, मतलब बेसिकली 4 - 1 है इंटू 3, वो 12 होता है। अब उसका मीन स्क्वायर वैल्यू जो है SS बिटवीन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, इसका ये फॉर्मूला है। तुम डाल दिया 12.87, ऐसे ही यहाँ पे तुम फॉर्मूला डाल दिए हो, तुमको 1.4 मिल गया है। हाँ, अभी एक्चुअली क्या है, जब स्टैम्प पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द नंबर्स, और एफ स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला ये है, वो तुम PD सर का फॉर्मूला ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझे ना, फॉर्मूला सेम है। ये मैं तुमको फिलोसफी पर्पस, मतलब इसके पीछे क्या है इसको ही दिखा रहा हूँ तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी PD सर का नोट है। हाँ, उसमें जैसे किया है उसको ही फॉलो करो। उसको उसने एक कोई दूसरा फॉर्मूला, दूसरा A के जगह B यूज़ किया होगा या C यूज़ किया होगा, लेकिन वो अलग है। लेकिन उसके पीछे क्या है, क्यों कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो, समझाने के लिए। एक्चुअली मेरा काम है समझाना। हाँ, एफ स्टैटिस्टिक्स का ये फॉर्मूला पता नहीं PD सर क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, मेरे बुक में मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। सो MS बिटवीन बाय MS विद इन, इसका 9.19 आया है। नाउ इंटरप्रेटिंग योर रिजल्ट, तुमको एग्ज़ाम में ये क्रिटिकल एफ वैल्यू तुमको 0.05 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, DF 12 है, क्रिटिकल वैल्यू तुमको दे देगा 3.89। वो टेबल के अंदर ही है, तुमको टेबल तो नहीं देगा, तुमको बोल देगा ये वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू। ये एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 उसका 2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 उसका 12 है, ठीक है ना। अगर 4 सैंपल होता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 भी हो जाता। खैर, क्रिटिकल वैल्यू F, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 4 सैंपल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 2 के जगह 3 होता, और इसके 12 हो जाता, 20 होता, तो 4 16 हो जाता है ये। हाँ, सो एक दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 में क्रिटिकल वैल्यू F एट 0.0.55 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेबल में है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंस में डिफरेंट क्या वैल्यू होता है, क्रिटिकल वैल्यू क्या है, वो रोनाल्ड फिशर ने निकाला है। तो वहाँ से वो डेटा उठा के तुमको एग्जाम में दे देगा। F = 3.89। अब तुम कंपेयर कैलकुलेटेड F, तुमने कितना कैलकुलेट किए हो, 9.19। तो एफ स्टैटिस्टिक ये फॉर्मूला डाल के, हाँ इसको हाँ, ये एग्ज़ाम में ये कैलकुलेशन का गलती मत करना, ठीक है ना थोड़ा। और मेरे विचार में, अगर ट्राई टू अवॉइड मैथमेटिक्स, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि छोटा 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो परफेक्ट है, लेकिन सम को मत करना ना, बहुत गलती हो जाता है, तब तो टेंशन रहता है, बहुत टाइम का वैल्यू रहता है, बहुत कुछ होता है ना, तब यू आर नॉट एट द माइंड, एकदम कूल नहीं रहता है, जितना भी बोलो माइंड कूल नहीं रहता है। सो मेरे विचार में ट्राई टू अवॉइड, अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आया तो उसको करना, अगर कोई उपाय नहीं है तो तब क्या करो, तब को तुमको करना ही पड़ेगा। अगर उपाय है तो इफ यू हैव ऑल्टरनेटिव चॉइस तो दूसरा करना है, इसको अवॉइड करना। 2 एक नंबर के लिए ठीक है, अगर व्हाट इज़ एफ वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या है, अगर ऐसे पूछा, ये सब चीज़ मत दे देना, लेकिन जहाँ पे ये कैलकुलेशन आता है ना, वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में मेरा एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यही बोलता है, मैं जो देखा हूँ स्टूडेंट। वीक का बात नहीं है, बात है जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग भी है, मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग भी है तब भी एरर होता है।
हाँ रेस्ट हो हाँ, गई। दिमाग अगर ठंडा नहीं है, हाँ, दिमाग अगर ठंडा नहीं होता है उस समय, कूल नहीं होता है, नॉर्मली घर में कर दोगे लेकिन वहाँ पे नहीं कर पाओगे, मतलब कर पाओगे, हाँ, गलती वहाँ हो पे जाएगा, गलती हो गया तो पूरा तो कट जाएगा ना नंबर। यस सर। हाँ, वो तो मैं तो जी सर। तुम ये कंपेयर करके तुम देखा देखा क्या 9.19 इज ग्रेटर देन 3.85, हाँ सर। तब तुम्हारा जो नल हाइपोथेसिस है कोई फर्क नहीं है इसमें, वो तो रिजेक्टेड हो गया। तो कोई तो तब तुम्हारा फर्टिलाइजर में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो होता ही है ना। सो बायोलॉजिकली तुम क्या, तो तुम बायोलॉजिकली तुम बता सकते हो भाई, तुम तो वैल्यू ही देख के बता सारे भाई ये तो लंबा ही दिख रहा है। फर्टिलाइज़र, ये वाला फर्टिलाइज़र नॉर्मल नहीं है, फर्टिलाइज़र से कौन सा फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा हाइट दिया है? अगर हाइट, अच्छा हाइट चाहिए हमको, फर्टिलाइज़र बी सबसे अच्छा है, फर्टिलाइज़र ए का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तब तुम क्या किया, रिजेक्टेड योर नल हाइपोथेसिस एंड यू हैव टेकन योर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, फर्टिलाइजर टाइप सिग्निफिकेंटली तुम्हारा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है, फर्टिलाइजर टाइप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड प्लांट ग्रोथ। हाँ, विच स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, फर्दर एनालिसिस इज नीडेड। तुम टेस्ट करोगे, हाँ, बाद वाला ये सब चीज़ नहीं है, ये सब पोस्ट हॉक टेस्टिंग वो सब नहीं करना पड़ेगा। सो की पोस्ट हॉक टेस्टिंग तुमको सिखाया पीटी सर ने? नहीं सर। तब करने का ज़रूरत नहीं है, वो नहीं देगा। तो एनोवा का बेनिफिट तो तुमको पता चला है ना, तुम अपना डेटा का पोटेंशियल, यू कैन अनलॉक योर डेटा पोटेंशियल। एफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ऑलवेज वन टेल टेस्ट, पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हो तुम। एनोवा ओनली इंडिकेट्स इफ डिफरेंस एग्जिस्ट। ए सबसे ज़्यादा अच्छा है या बी सबसे ज़्यादा अच्छा है ये नहीं बोल सकता है, इतना बोलेगा तीनों में फ़र्क है भाई। हाँ। ठीक है ना, यहाँ पे ही ख़त्म कर देगा तुम्हारा एनालिसिस। अलग टेस्ट करना पड़ेगा कि ए और बी के बीच में, तब तुम बी और सी के बीच में तुम टी टेस्ट किए हो, करके दूसरा टेस्ट करके तुमको पता चलेगा। ओके, इसका प्रॉब्लम्स 2-4 दे दूंगा मैं बाद में। वन वे का दे दीजिए। हाँ, वन वे का 2 भी है तुम लोग के सिलेबस में? ये दोनों है, वन वे टू। कुछ भी दे दिया ना, उन लोग का दिमाग में कुछ जो सेट किया सिलेबस